Hello everybody, Jatin here, and welcome back to another part of online chess. In today's lesson, we will look at some important elements of pawn ending. We call simple pawn ending. Uh, the key squares, the position, and the rule of the square, outflanking, pawn on the fifth, king on the sixth. Okay, so in this chapter, we will cover some of contents like promoting the pawn, how to occupy the key squares, how we gain a position, and consequence of rook pawns, and the rule of the square. So if you new at this video, then if you don't know about the position, key square, and rule of the squares, so must watch जो वीडियो मैंने ऑलरेडी डेवलप करके रखा है एंड ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है कि अपोजिशन आउटफ्लैंकिंग की स्क्वायर्स और रूल ऑफ द स्क्वायर क्या होते हैं और उनका चेस में फोन एंडिंग में इंपॉर्टेंस क्या है. सो टुडे वी विल डिस्कस इन डीपली हाउ वी कैन apply this fundamental in real games. Okay, so let's start without further ado. Here the position in front of us, here white to play. And you can see the black king is going to attack on b3 pawn. He's going to take b3 pawn actually. So mainly here white is unable to defend the pawn. Because if you try this move, here, then black will push the pawn on here. Okay, that's the problem in why white can't. So pawn on d4 and pawn on b4, and now it's black to white to move, and white will back, and then black will capture the pawn. If you think at this position, okay, अगर आप intermediate level पे हो और आपको positions पता है, then I will show you. Let's see if you try to save your pawn by a2, then black will simply push the pawn on b4. Now it's white to move, and white is in zugzwang. So now white has to move white. If you try a1 and you think if black will, when black will take, as soon as take my pawn, I will take the position. But here I want to mention you, when pawn on the fourth rank, okay, when pawn on the fourth rank, in black's case, pawn on the fourth rank and the king on the third rank, a position doesn't matter here. Okay, black wins in any case. And in white's case, when pawn on the fifth rank and the king on the sixth rank, then a position matter नहीं करेगा कि आप अपोजिशन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो. व्हाइट कोई भी केस में विन होता है. So यहाँ पे let's check out this game, and now he play king a3, and if you try to gain the position, then he simply push the pawn, and if you come here, then he simply put the b2, and then king c2, and now king a1, and black wins. So that's why pawn on the fifth or sixth, in black's case, pawn on the fourth and king on the third, a position doesn't matter. So what is the best move here? So here we know if pawn would be captured on b4, then we can take the position via b2, because pawn on the fifth and the king on the fourth, always the position matters. So here white played pawn to b4 because white is unable to save the pawn. So he said, okay, मेरा pawn तो already जा रहा है, then how we can save the game? So think about the game, not for pawn. So as soon as black take this pawn, we get the position via king b2, and the game is drawn, because now pawn is on not fourth and king third is the fifth and fourth. So that's a position matter. Here if black try, then we simply take the position, and if we push the pawn, and then we know this rule, when king and pawn on the same rank, okay, when king and pawn on the same rank, and if weaker side, so weaker side and stronger side, what the difference between weaker and stronger? Weaker side means जिसके पास material कम है, और stronger side जिसके पास material ज़्यादा है. तो here black is a weaker, stronger side.
So when king and pawn on the same rank and weaker side king get the closer position or distant position, the game is always drawn. Okay, so next, yeah. So here again white to play, and here we can see the king and pawn both on the same rank, and white king gets the position. It's a distant position, but here the problem, because it's a white to move, so white has to leave the position. How white can save this game? So here the problem is, if we play king to d2 and e2, then black gets the position by e2 and d4, and we know this rule: when stronger side king is front of the pawn one square head, and if weaker sides move, then game loss. So यहाँ पे अगर आपका किंग, स्ट्रोंगर साइड का किंग जिसके पास पॉन है, अगर वो पॉन से एक स्टेप आगे है, वो कहीं पर भी है, इट डजंट मैटर कि वो कहाँ पे है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, इसमें कि वन रैंक आगे होना चाहिए। किंग ऑन द फिफ्थ पे है तो वो किंग फोर्थ पे कहीं भी होगा, और ब्लैक व्हाइट किंग अगर अपोजिशन में है और हुएवर इज मूव, गेम लॉस। सो यहाँ पे अब हमें ये फॉलो करना है कि ब्लैक किंग के नेक्स्ट दो स्टेप हैं। ब्लैक किंग इधर प्ले किंग टू d4 एंड किंग टू e4। सो अब इन दोनों स्क्वायर पे हमें फोकस करना है, क्योंकि जब उसका किंग पोन से एक स्टेप आगे आएगा तब हम अपोजिशन में आएंगे और ब्लैक का मूव होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग जब मूव करेंगे, देन हाउ वी कैन eyeing down on both squares. So first analyze the d4 square. Okay, so d4 square का जो अपोजिशन स्क्वायर है वो है so वो है d2 स्क्वायर, और जो e4 का अपोजिशन स्क्वायर है वो है e2 स्क्वायर। तो जब किंग इन दोनों स्क्वायर्स पे कहीं पर भी आएगा तो हमें उसके अपोजिशन में आना है, क्योंकि पॉन फिफ्थ पे और किंग फोर्थ पे, और अगर हम अपोजिशन ऑक्यूपाई कर लेंगे, अगर हम अपोजिशन कर ले लेंगे तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट मूव है व्हाइट का वो है किंग टू e1। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अपोजिशन बिकॉज black king can't get the position because the opposition square is occupied his own pawn. So ये भी एक अपोजिशन ही होता है जब हम पॉन के सामने अपोजिशन लेते हैं और हमारा ओपोनेंट एनिमी किंग अपोजिशन टेक नहीं कर पाता बिकॉज उसका खुद का पॉन उस स्क्वायर पे ऑलरेडी है। सो दैट्स व्हाई इफ वी प्ले हियर then we get the position by king to e2, and now it's black to play, and we already know if king is in front of the pawn one square, and if the weaker side gets the position, close position, okay, here distance position matter नहीं करेगा, here यहाँ पे close position matter करता है। So a game is always drawn because now black has no move. Okay, so if we play here, then we come here and then we get a position again, so it's again a position, and now black is forced this. Okay, so the best here the move is king to e1 and take the distance position against the pawn. Okay, so the next position, okay, so look this position carefully. Here white to play and win. यहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? सो pawn on the fourth rank. Okay, pawn on the fourth rank, b4 पे pawn है, और we already know the key square is c6, b6 and a6. so अगर जब तक pawn, या तो हम pawn के सामने वन स्क्वायर आएंगे और ब्लैक अगर अपोजिशन लेता है तो हमारा मूव नहीं होना चाहिए, उसका मूव होना चाहिए। और ये सब मैंने आपको बताया कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इजीली वहां से समझ जाओगे अपोजिशन और इसका मीनिंग क्या होता है की स्क्वायर्स का। सो अब हमें व्हाइट को, आप देखो बोथ किंग अफार फ्रॉम द पॉन, सो अब व्हाइट को इन तीनों की स्क्वायर्स में से एक स्क्वायर को ऑक्यूपाई करना है। सो लेट्स काउंट कि कितने उसको मूव लगेंगे, 1। ओके, सो हम काउंट करते हैं कि हम कहां से उस गेम को विन कर सकते हैं।
तो अगर व्हाइट सिंपल रूट चूज करता है 1 2 3, तो 3 मूव में हम पॉन के एडजेसेंट फाइल रैंक पे आएंगे और ब्लैक का किंग 1 2 एंड 3 में यहाँ आ जाएगा। और अब आप देख सकते हो योर किंग एंड पॉन ऑन द सेम रैंक एंड ब्लैक ने जो है वो क्लोज अप पोजीशन को मैनेज कर लिया है। तो अब हम इस गेम को विन नहीं कर सकते। तो हम विन करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे? तो हमें वो रूट चेंज करना है, हमें वो रूट चूज करना है जहां से हम उसके किंग से पहले की स्क्वायर पे पहुंचे। तो हमारे जो की स्क्वायर्स हैं वो हैं C6, B6 एंड A6। तो अगर आपका किंग पॉन से 2 स्टेप आगे इन दीज की स्क्वायर्स मींस 2 स्क्वायर सेम फाइल पे यानी B6 पे और उसकी बोथ बिसाइड साइड राइट और लेफ्ट अगर एडजेसेंट स्क्वायर, ये तीनों की स्क्वायर्स होती हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी स्क्वायर्स अगर स्ट्रॉन्गर साइड किंग ऑक्यूपाई कर लेता है, इट मीन वो वहां पे पहुंच जाता है, तो गेम ऑलवेज विन होता है अगर आप उसके बाद में अपोजिशन को मेंटेन करते हो और करेक्टली आउटफ्लैंकिंग करके खेलते हो। तो अब हमने देखा कि C6 पे हम नहीं आ सकते बिकॉज 3 मूव में हमारा किंग यहाँ आ रहा है और उसका किंग 3 मूव में C6 पे आ रहा है और उसके बाद वो हमारे किंग को प्रिवेंट कर देगा। तो अब हम यहाँ से उसके लिए एक बेस्ट रूट चूज करेंगे। सो द बेस्ट मूव इज किंग C2। नाउ वी विल ट्राई टू occupy this 5 and A5 and A6 because हम जा रहे हैं 1 A फाइल पे हम कितने मूव में जा रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 स्क्वायर में हम A6 को कवर कर रहे हैं और उसका किंग आ रहा है 1 2 एंड 3। जब वो 3 में यहाँ आएगा तो हम 3 पे यहाँ होंगे। उसके बाद में जब वो ओके सो हमारा मूव है, जब वो यहाँ आएगा तो हम 4th मूव यानी कि हमारा मूव होगा व्हाइट टू प्ले है तो हमें 4 मूव खेलने को मिलेगा और हम A5 पे आ जाएंगे और उसके किंग को प्रिवेंट कर देंगे। लेट्स चेक आउट हाउ वी कैन सोल्व दिस पोजीशन। सो नाउ वी प्ले किंग C2 एंड ब्लैक ट्राई टू दिस पोजीशन एंड नाउ वी प्ले किंग B3 एंड ही कम हियर एंड नाउ किंग A4 एंड नाउ ही कम ट्राई हियर। सो हियर द बिग ब्लंडर इफ यू प्ले किंग B5. If you play king B5 immediate, then black king will access the key position and game drawn. So here after C6, after black C6, we play king to A5. So after king A5, if black try to come here, then we will get the position. And now we know this rule कि pawn से अगर एक स्टेप किंग आगे है तो हमारा मूव नहीं होना चाहिए। अगर उसने अपोजिशन लिया है तो ये दोनों किंग अपोजिशन में। नाउ ब्लैक टू प्ले एंड ब्लैक हैज टू लीव वन ऑफ की स्क्वायर। ओके सो मैंने आपको भी बताया कि ये की स्क्वायर है, ये की स्क्वायर है और ये की स्क्वायर है। सो अब ब्लैक का मूव है तो इन तीनों में से एक की स्क्वायर को छोड़ देगा और हम की स्क्वायर को ऑक्यूपाई कर लेंगे एंड देन गेम विन। ओके सो दैट्स रीजन व्हेन यू ट्राई टू सोल्व द पॉन एंडिंग, तो आपको की स्क्वायर्स और इन चीजों पे डीपली फोकस करना है कि इनका मतलब क्या होता है, हाउ वी कैन विन व्हाई हैव एक्सेस द की स्क्वायर्स। ओके सो रूट चेंज करना, किंग को ऑलवेज जितना हो सकता है आप एंड गेम में डायगनली आप प्ले करो, क्योंकि चेस में एक रूल है, अगर आप किंग को सेम फाइल और सेम रैंक पे अगर आप सेकंड टाइम खेलते हो सेम फाइल और सेम रैंक अगर रिपीट होता है तो आप एक मूव पीछे आ जाते हो, मींस कि आपका टेम्पो लॉस्ट होता है। तो ऑलवेज ट्राई टू मूव योर किंग इन डायगनली, क्योंकि डायगनल जब हम मूव करते हैं तो हम फाइल और रैंक दोनों चेंज कर देते हैं। ओके सो नेक्स्ट वर्जन आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे इसको एक्सेस करना है। ओके so now it's a rook pawn. Okay so this situation called soldering away, how we will use the soldering away or what is the meaning of soldering away? soldering away का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे विनिंग में हो, लेकिन अगर आप मूव काउंट करते हो बोथ किंग, तो आपको लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट गया और मेरा किंग उसका किंग पोजीशन ले लेगा या फिर गेम को ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी है, तब हम सोल्डरिंग अवे करते हैं। सोल्डरिंग अवे मींस अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक मूव एंड गेम में एक मूव इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक मूव पीछे रह गए पोजीशन लेने से तो
स्ट्रोंगर साइड गेम विन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो व्हाइट किंग है वो ब्लैक किंग के नियर है, तो वो सिंपल 1 2 3 3 मूव में इस पॉन को कैप्चर कर सकता है अगर वो कोई भी रूट से जाता है 1 2 and 3। okay, and if you go from there 1 2 and 3, तो इन दोनों केस में 3 मूव में कैप्चर हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रूक पॉन है, और अगर आप रूक पॉन के बारे में भी वो आप वीडियो देख सकते हो, उसमें सब ब्रीफली। तो जब आपका किंग जाएगा इट्स मीन हियर, then white king will come on, black will king come on here, and now come here and he come। तो black जो king है वो f7 स्क्वायर पे आ जाएगा। मीन्स कि जब आप लेट्स चेक व्हेन यू प्ले हियर हियर हियर, so then he will come here here, and as soon as you pawn take then he come here, okay, and game ड्रॉ। बिकॉज ये रुक पॉन है, और रुक पॉन में आपको पता है कि रुक पॉन में दो ही पोजीशन में ड्रॉ होता है, या तो आप वीकर साइड का किंग क्वीनिंग स्क्वायर को कंट्रोल कर ले, या फिर जब आप स्ट्रॉन्गर साइड किंग पॉन के सामने है और वीकर साइड किंग अगर उसके किंग को स्टक कर देता है पॉन के सामने, लेट्स चेक आउट। ओके, सो इफ यू गो डायरेक्ट king f7, then black tried king here, and then you come here and black play king e5, sorry e6, and as soon as you take then he will capture the key squares, and this is the horizontal position, and now white stuck because white has no move. If you play here then don't come down, okay, don't take the position, and if you push the pawn then you come down and it's stalemate position। so लेकिन अब white is winning here। so white क्यों win है? क्योंकि white को पता है कि मैं 3 मूव में pawn को कैप्चर कर रहा हूँ, 3 मूव में उसका king f7 स्क्वायर पे आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम खेलेंगे सोल्डरिंग अवे। सोल्डरिंग अवे मीन्स हमें 3 ही मूव लगेंगे pawn को कैप्चर करने में, लेकिन उसको f7 स्क्वायर जो कि अपोजिशन है ये स्क्वायर, जब उसका किंग 1 2 3 3 मूव में आ रहा है 1 2 and 3, ओके, so 3 मूव में वो आ रहा है, तो जैसे हम पॉन को कैप्चर कर रहे हैं वो f7 पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम उसको अभी f7 में आने में 4 मूव लगेंगे और हमें पॉन को कैप्चर करने में 3 ही मूव लगेंगे। इट्स मीन कि जब हम पॉन को कैप्चर करेंगे वो तुरंत f7 पे आके अपोजिशन नहीं ले सकता। दिस इज कॉल्ड सोल्डरिंग अवे। सोल्डरिंग अवे मीन्स कि धक्का मार के हम आगे निकलेंगे और उसको एक मूव पीछे कर देंगे। सो हियर द बेस्ट मूव इज किंग टू f6। so after king f6 now you can see black has no move and he will repeat the 5 rank। so he come here and then we come here and now he come here and then we take, and now you can see ब्लैक किंग एक स्टेप पीछे रह गया है, वह f7 पे तुरंत नहीं आ सकता, एंड ही ट्राई ओके, सो ही ट्राई टू कम हियर एंड देन वी विल ऑक्यूपाई दिस स्क्वायर, एंड इफ ब्लैक कम हियर देन इट्स लॉस्ट बिकॉज नेक्स्ट मूव द क्वीन। ओके, सो दिस इज वेरी वन ऑफ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव इन एंड गेम, सोल्डिंग अवे। सोल्डिंग अवे, ओके, जब आप ये चीजें कैलकुलेट करोगे कि उसका किंग अपोजिशन में आ रहा है तो आपको सोल्डिंग अवे फाइंड करने की जरूरत है कि ताकि उसके किंग को एक मूव हम लोग पीछे पुश कर सकें और हमें उतने ही मूव लगने चाहिए। अगर हमें भी 4 लगेंगे उसको भी 4 लगेंगे तो फिर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हमें ऐसा रूट चेंज करना है जहां से हमें तो उतने ही 3 मूव लग रहे हैं लेकिन उसके किंग को हम पुश करके निकल रहे हैं, एक मूव उसका किंग एक्स्ट्रा ले रहा है। ओके, सी दिस पोजिशन एंड इट्स वेरी सिंपल बिकॉज किंग ऑन पॉन ऑन g2। सो फर्स्ट हम अब यहाँ पे बात करेंगे रूल ऑफ द स्क्वायर की। तो रूल ऑफ द स्क्वायर मींस कि जब दोनों किंग पॉन से बहुत दूर है तब हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या पॉन विदाउट किंग की हेल्प के प्रमोट हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ द स्क्वायर। सो यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट दोनों किंग पॉन से दूर है। एट बिगनर लेवल आई सा मैनी प्लेयर्स स्टार्ट g4 g5 g6 g7, बट वो ये कैलकुलेट ही नहीं करते क्या ब्लैक किंग उस पॉन को कैच कर लेगा। सो अगर हम यहाँ पे मूव कैलकुलेट करते हैं, इस वाइट टू प्ले एंड वी थिंक 1
टू, थ्री, 4 and 5। सो हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया। मेरा फोन 5 मूव लेगा एंड ब्लैक का किंग कितना मूव लेगा, 1, 2, 3 and 4। सो फाइनली वो हमें पकड़ लेगा क्योंकि वो 4 मूव में F7 पे आ रहा है और जब हम क्वीन बनाएंगे तो वो हमारे पोन को कैप्चर कर लेगा। लेकिन इन एंड गेम जब ऐसी पोजीशन आती है, वी हैव नो टाइम टू कैलकुलेट सम स्टफ 1, 2, 3, 4 एंड समटाइम भी हम कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो जाती है, एरर भी आ जाता है, सो हम गेम हार जाएंगे। तो इसका जो सिंपल मेथड है वो है रूल ऑफ द स्क्वायर। तो रूल ऑफ द स्क्वायर की वीडियो में मैंने ब्रीफली बताया कि हाउ वी कैन क्रिएट द रूल ट्राइंगल, और हम ये फाइंड करेंगे कि अगर उसका किंग उस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है तो वो हमें पकड़ लेगा, नहीं तो हमारा पॉन प्रमोट हो जाएगा। सो हाउ वी विल मेक ट्राइंगल। ओके, सो ट्राइंगल जो बनाएंगे वो ट्राइंगल बनेगा लाइक फर्स्ट मूव है हमारा G4। ओके, तो आफ्टर G4 हमें खेलने से पहले एनालाइज करना है कि G4 के बाद अब G4 से हम एक ट्राइंगल को लास्ट 8 रैंक पे ड्रॉ करेंगे। तो कैसे, ओके, सो ये हमारा ट्राइंगल हो गया यहाँ से, और यहाँ से वापस हम एक स्ट्रेट जहां पे पॉन है उस रैंक से ट्राइंगल ड्रा करेंगे, और यहाँ से अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये। सो ये हो गया ट्राइंगल। अगर इस ट्राइंगल में ब्लैक किंग एंटर कर रहा है तो कुपोन को कैच कर लेगा। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ द स्क्वायर। तो अभी हमने देखा कि ब्लैक का मूव है और वो सिंपली इस ट्राइंगल में एंटर कर रहा है, तो मतलब कि हम इस पोन को विदाउट हेल्प किंग की हेल्प के प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि उसका किंग रूल ऑफ द स्क्वायर के अंदर है। सो अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, वी कैन सी हमारा किंग पोन से एक स्टेप आगे है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मैटर नहीं करता है कि आपका कौन सी फाइल में है, मैटर ये करता है कि आपका किंग पोन से एक स्टेप आगे है। तो हम यहाँ पे सिंपली अपोजिशन ले लेंगे, और अगर ब्लैक इसको फॉलो करेगा तो हम फाइनली मेन पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो फाइनली हम लोग मेन पोजीशन पे पहुंच जाएंगे एंड देन वी नो इट्स ब्लैक टू प्ले एंड दिस इज अवर की स्क्वायर। ओके, दिस वन एंड दिस वन। सो नाउ कौन से 2 स्टेप आगे सेम फाइल और बोथ एडजेसेंट फाइल हमारी की स्क्वायर्स होती है, तो अब ब्लैक किंग को एक की स्क्वायर को छोड़ना पड़ेगा और हम की स्क्वायर को एक्सेस कर लेंगे एंड देन ही कम हियर। Okay, so thus if you play pawn, then it's a big blunder because we already know king and pawn on the same rank, and if weaker side king gets the opposition, close opposition or distant opposition, game draw. So ये game draw हो जाएगा। और if you try to one step, then it's always draw because then it's also draw because pawn king at 6, and now you can see your king is one step of the front of the pawn and black gets the opposition, so it's a draw. So here the best move is after a king here. So now if king play, whether he play, okay, doesn't matter, he play here, then we will take this. And if he come here, so then what we do, first we will take the position, okay, and if come here, then first we get the key squares again. So improve your king position until he come on the 6th rank. Okay, so then if he come down, then it's a big blunder because king can't catch the pawn from behind. Okay, so then first here we will promote h6, and now you can see our king is on h6. Now a position doesn't matter. Okay, king h6 or pawn on the 5th rank, a position matter nahi karta hai. So this is the basic thing how to get the position and rule of the squares, king 5th and pawn 5th and king 6th. Okay, next position. So here white to play. So if you try, okay, see this position, and I saw मैंने आपको बताया था अभी कि अगर ये position both है, so if you try to move your king, okay, then black has a move. Black simply puts the pawn on the 5th, and he said, okay, take my pawn. Now I'm able to take the position by a b7. He said, okay, as soon as you capture my pawn, then I will play king b7 and the game is opposition. Okay, because pawn on the 5th and king on the 5th opposition matter करता है. So लेकिन यहाँ पे black find the brilliant idea. He said, okay, pawn on the 5th rank.
सो नाउ अभी अगर पोन कैप्चर होगा तो अपोजिशन मैटर नहीं करेगा एंड ब्लैक व्हाइट विंस हियर। सो ये भी जब तक आपको थ्योरी और रूल्स याद नहीं होंगे तब तक आप पोन एंडिंग के अंदर आपको डिफिकल्टी रहेगी। रूल और थ्योरी अगर आपको याद है तो यू कैन मैनेज विन। सो इफ किंग कम हियर देन नाउ वी स्टार्ट पुशिंग आवर किंग एंड एक रूल और भी है। ओके सो इट्स अ ड्रॉ राइट, या because now it's you access. Okay, so this is not very important. So first, white push the pawn on b5, and after king b7, king e4, king c7, and king to e5. So this is very important move, king e5. Okay, so now black play here, and then we get a position. Come here and we outflank it. Come here and now we. So when pawn on the same rank, same file, और जो किंग पोन की बेस पे अटैक करता है ऑलवेज विन होता है। सो किंग कम हियर एंड नाउ ब्लैक किंग इज इन जुगजॉन, और अभी यह पोजीशन मैटर नहीं करेगा बिकॉज पोन ऑन द फिफ्थ एंड किंग ऑन द सिक्स्थ इज ऑलवेज विन। सो कम हियर एंड ब्लैक रिजाइन। ओके सो फ्रेंड आई थिंक आपको समझ में आया पोजीशन। ओके या सो दिस इज द पोजीशन अगेन एंड हियर white to play. Okay, and black is going to take this pawn, and black pawn on the d6 square, and we know the key square is c4, d4 and e4. ये तीनों की स्क्वायर है, और अब जो व्हाइट है वो अपने पोन को बचाने में अनेबल है, वो उसे नहीं बचा सकता क्योंकि ब्लैक किंग 1 और 2 स्टेप में उस पोन को कैप्चर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे व्हाइट जो है उसको थ्योरी आता है, उसको ही नो थ्योरी ठीक है। ओके सो नो यू आर गोइंग टू टेक माय पॉन ऑन द की स्क्वायर। ओके वो की स्क्वायर पे पॉन को कैप्चर करने जा रहा है, तो की स्क्वायर पे अगर किंग आता है तो ऑलवेज विन होता है, अपोजिशन मैटर नहीं करता क्योंकि यहाँ पे ब्लैक के पास एक रिजर्व टेम्पी होता है। रिजर्व टेम्पी मींस एक स्टेप पॉन पुश कर सकता है। लेट्स चेक आउट। ओके so if you play like you said, okay, I get the clear position and he come here and you come here and he takes and you play king e2 and you say, oh, I get a position, but it's not a position because now black has a one move in reserved MP and he play d5. So now it's white to play and you can see it's the main position and black win क्योंकि अभी ब्लैक के पास पोजीशन है वन कौन से एक स्टेप आगे whoever is move game loss। सो अभी जो की स्क्वायर है वो है c3 d3 c3 d3 एंड e3। ओके एंड अब आप यहाँ खेलते हो तो ये की स्क्वायर वो एक्सेस कर लेगा एंड ब्लैक किंग गोज इन द थर्ड रैंक और पॉन अभी पुश हो जाएगा। सो गेम विन। सो हियर व्हाइट फाइंड द आइडिया, ही सेड ओके so this is the problem when king and pawn on the same rank। अगर किंग पोन से एक स्टेप आ गया तो मेरे को क्लोज अप पोजीशन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर किंग और पोन सेम रैंक पे है तो मैं डिस्टेंस पोजीशन से भी गेम को ड्रॉ कर सकता हूं। देन ही फाइंड ही सेड ओके पोन तो ऑलरेडी कैप्चर हो रहा है ना, तो फिर क्यों ना पोन को सही स्क्वायर पे कैप्चर करवाया जाए। टुक एंड नाउ king c1 and get the distance opposition. Okay, so king here and king to d1 and now it's game draw because if king come here then white get the position via e2 and if king come here and then white get the position via d4 or if we push the pawn and then it's always draw because if your king is behind the pawn, you can't promote the pawn. If weaker side king, your opponent king access the key square, so he come here. Okay, so this is the move, and if we come here and then king g2 and game draw. So friends, so this is the basic single pawn ending. How to promote the pawn? Try to capture the key squares. So again, I will repeat. कि जो मेन जो रूल है पोन एंडिंग के, बिकॉज पोन एंडिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चेस। एक्चुअली में बहुत ही बोरिंग चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टेड है क्योंकि 99% चेस
डिपेंड ऑन द पोन एंडिंग, क्योंकि जो पोन एंडिंग का जो हमारा प्लान होता है ना, जो हमें नॉलेज होती है डीप, तो हम मिडल गेम में ही उसकी प्लानिंग करते हैं कि कौन से स्क्वायर पे पीस कैप्चर करूं, कौन से स्क्वायर पे पीस एक्सचेंज करूं, ताकि आगे इन फ्यूचर इन एंड गेम में उसका किंग मेरे किंग को अपोज ना करे, वो मेरे को प्रिवेंट ना करे एट। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको ब्रीफली, और अगर आप न्यू हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप देखो। और प्लीज अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आप कोई भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट। और आपका लाइक शेयर और कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। एंड दैट्स ऑल। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बाय बाय।